There are two things that I feel are significant for me to share in order to set up the context for this particular dialogue. एक चीज तो ये है कि जब भी हम अपनी लाइव्स में किसी भी ट्रांजिशन फेज से गुजरते हैं, those phases of transition tend to bring with them a certain set of circumstances that can be both exciting and things that we look forward to, but during those transitions there are also inevitably stresses and a certain amount of, let's say, testing of our psychological resilience that tends to take place. And as far as life's transitions go, I think that we would agree that when we are young adults transitioning from school life to college life, a lot of things change for individuals during college, and the life that one foresees immediately after completing college also brings with it a certain thought process which can bring into question various aspects of our lives, ranging from identity, purpose, path, etc., etc. That's one. The second significant factor I feel to highlight here is the very state of mental health and psychological intervention that is available in India infrastructurally, particularly at educational institutions. Yes, it's become mandatory for schools, for junior, middle, and high schools to have mental health counselors and such. But I personally haven't come across very many scenarios where at a college level there is always accessible, good quality help available. And the reason, of course, I am saying all this is because we are calling our dialogue today Counseling College Calamities. And we're very lucky and privileged to have with us somebody who doesn't only work in that realm, but is also someone who's been largely responsible for setting up a very robust system in her own institution. It's also important, I know this is a slightly long introduction, that it's also important not just to set up infrastructure alone. It's also important that that infrastructure be supported with a certain culture. And I think when those two things coexist, then the impact is really sort of tangible and felt. So joining us is psychologist Pallavi Sharma, who has been performing a wonderful role and function at a university just outside my own beloved city of Jaipur. And from her, we hope to understand how she has set up or helped to set up that entire function at their university, and sort of pick her brains around the observations and insights she's gathered along the way. I would like to welcome Pallavi and extend a big thank you to her for making the time. Welcome. Hello, Karthik ji. Thank you so much for starting this session. And yeah, I'm ready and I'm happy to share multiple things in today's session. मैं एक मेरा थोड़ा सा मेरे खुद के स्वार्थ की वजह से एक सवाल है बिफोर वी गेट इनटू व्हाट वी आर हियर टू डिस्कस,
क्योंकि आई एम समवन हु हैज encountered this and navigated it in my own life to some extent. You wear many, many hats. You have explored many aspects and facets of your own personality. आप एक चीज नहीं करते हैं. You have various passions and interests, and you are pursuing quite a few of them. I would love for us to begin with you telling our audience a little bit about the various things that you do. Okay. So, apart from my work, which is as a counseling psychologist, इसके अलावा मैं बतौर आर्टिस्ट भी काम करती हूँ. तो इन विजुअल आर्ट्स, इन एंड आई ऑल्सो राइट पोएट्रीज इन हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है. और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर रूप में एक्सप्रेस कर पाती हूँ जब मैं अपनी उस भाषा में लिखती हूँ जो बचपन से हम जिसे बोलते आ रहे हैं. साथ में थिएटर भी मैं करती हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट जिसमें एक्सप्रेशन जो है उस और हर तरह से हम उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, विद द बॉडी लैंग्वेज, विद द जेस्चर्स, विद द एक्सप्रेशंस. सो हाँ. तो जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बचपन में 3 साल की उम्र में ही, मुझे जितना याद है कि पहली पेंटिंग शायद तब बनाई होगी, या पहली कविता जो है वो कुछ अपने कमरे में बैठे बैठे मैंने कुछ ही बना दी थी, मेरी डॉल को लेके, दीवार पे कुछ रंग को लेके, और वो मेरी मदर ने लिख ली थी उस समय. तो इसलिए मुझे पता है कि इस तरीके का कुछ बुना बचपन में, और या कुछ पेंटिंग्स है जो पेरेंट्स ने संभाल के रखी हैं. पर दिस इज वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज एवरीबडी इज सो, क्योंकि हम इंसान हैं तो इमोशंस तो हमारे अंदर हैं ही. इमोशनली हम अपने आप को कितना महसूस कर पाते हैं, और अगर हमारे पास एक जरिया हो जिसमें हम उसे एक्सप्रेस भी कर पाए, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत हो जाता है कि हम अपने आप को एक्सेप्टेंस भी उतना दे पाते हैं. कि अगर दुख है तो ठीक है, उसको अगर हम एक्सेप्टेंस दे पाएंगे तो ही हम उससे बाहर भी शायद आ पाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि उसको अगर दबा लिया हमने, हम ना उसे कह पाए, ना लिख पाए, ना उसे शायद पेंट के थ्रू नहीं निकाल पाए, किसी भी तरह से हमने उसको कहा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है. तो आर्ट हीलिंग का भी काम करती है. क्रिएटिविटी तो है ही कि हम अपने अंदर के जो ख्याल हैं, जो सवाल हैं, उन सबको टटोलते हुए हम आर्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं. और साथ में वो हमें हील भी करता है, क्योंकि वो हमें एक ऐसा स्पेस देता है जिसमें हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए. एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम खुद को ही नहीं, हम बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अच्छा, मेरे साथ हो सकता है तो इसके साथ भी तो हो सकता है. जजमेंटल माइंडसेट जो है वो उतना रिड्यूस होता जाता है, और हम ज्यादा इंसान बन पाते हैं, अपने आप को ज्यादा महसूस कर पाते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच आई वांट टू ऐड, की कला मेरे जीवन में इसलिए साथ में है क्योंकि अपने आप को महसूस करते रहना, खुद के साथ आगे बढ़ते रहना, वो उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू क्रिएट, टू एक्सप्रेस और टू हील. इट्स ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल वेन एवर वी फील लाइक कि जब हम पूरी तरीके से अपनी कला के साथ हैं. तो अगर अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप वर्कशिप कर रहे हैं, आप कुछ एक नेचुरल कोई एक एनर्जी है जिसको आप फील कर रहे हैं, वो आपको आर्ट करते हुए भी महसूस हो सकती है. तो वो कई बार बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी आर्ट के थ्रू आता है, क्योंकि हम अपने आप से, अपनी एनर्जी से उतना जुड़ पाते हैं और उतना अलाइंड हो पाते हैं. तो दीज आर सम थिंग्स विच आई वुड लाइक टू ऐड. मैं इतनी जोर जोर से बॉबल हेड की तरह सर इसलिए हिला रहा था क्योंकि आपने एक दो बहुत महत्वपूर्ण जरूरी बातें कही हैं और बहुत सुंदर बातें कही हैं. 2 मिनट में उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा. बिकॉज द थिंग इज दैट जहां तक मेरी खुद की समझ है, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम मेंटल हेल्थ को 1 मिनट के लिए ट्रीटमेंट मोडालिटी या रिएक्शनरी तरीके से न देखें और अपने जीवन में एज अ रूटीन चीज देखें, तो उसका एक मेरे हिसाब से अहम हिस्सा
इन एनी केस यही होता है कि उसमें वैलिडेशन हो, एक्सेप्टेंस हो, पर्सपेक्टिव्स हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो। और उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए अगर हमें अलग अलग चीजें करने का मन हो, तो वो हमें वातावरण मिलना चाहिए और वो लिबर्टी मिलनी चाहिए। And in the absence of that kind of environment and atmosphere is when frustration, anger, sadness starts creeping in. And अपनी जब offline भी बात हुई थी, and I don't think you'll have any problem in me mentioning this, that that is why as parents and families, we must understand how important it is to create that environment for our children at home, because that is the reason why you were able to a large extent, explore yourself and express yourself in so many different ways, because that liberty, freedom, encouragement was there. और जो ये हमारी एक चाह होती है कि हम किसी को एक छोटे से डब्बे में डाल के और उस पर एक लेबल चिपका दें, दैट इज समथिंग दैट इज entirely आई थिंक अवॉइडेबल। एंड आई ऑल्सो से कि मुझे बहुत खुशी है कि जो व्यक्ति आपके रोल में एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, वो खुद उस बात का सबसे बढ़िया मैनिफेस्टेशन और जीता जागता रूप है, दैट यू हैव एक्सप्लोर्ड so many aspects of yourself. You continue to do that. You continue to be in touch with yourself, and you continue to accept yourself and the world around you for whatever it is, good or bad. So, it makes a lot of difference when a person who is trying to play that role for others is actually a living embodiment of that himself or herself. So I really admire you for that, genuinely. Great. तो अब मुद्दे पे आते हैं। नाउ टेल अस अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा सा हमें अगर आप पीछे ले जाएं, आपका एसोसिएशन कॉलेज स्टूडेंट काउंसलिंग से कैसे हुआ, और वो आई नो इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन, बट वो जर्नी कैसे शुरू हुई? व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट you did to make this entire function more solid, more robust in your university? What were some of your experiences? ओके। सो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं उसमें शुरुआत करना चाहूंगी कि स्टूडेंट काउंसलिंग कॉलेज के अंदर करने से पहले मैंने काम किया है विद एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स RIHR, एंड और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे थे अंडर 18 बच्चों के साथ। और बाल अपराधों पे हम काम कर रहे थे, चाइल्ड राइट्स पे, जिस पे राजस्थान पुलिस और यूनिसेफ और उन सबका सपोर्ट उसमें रहता है। तो वो जो एक ग्राउंडिंग है, या वो जो एक बेस हमने डेवलप किया कि बच्चा बचपन में किस तरह से देख रहा है, चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं जो हैं, वो तो एक पार्ट हमारा काम का था ही कि हम विक्टिम काउंसलिंग कर रहे हैं या किस तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। बट उस सब में जाने के लिए एक बच्चे का माइंडसेट कैसा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली कैसी है, सोसाइटी कैसी है, और किस तरह के लोगों के बीच में वो बड़ा हो रहा है, क्या उसे एजुकेशन मिली है या नहीं मिली है, और मिल भी रही है तो किस रूप में मिल रही है, उसे नर्चर किया जा रहा है कि नहीं, क्या वो सवाल वो पूछ सकता है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीजों से हम गुजरे उस दौरान। और जब वो एक डेवलपमेंटल स्टेज को हम जब रीच कर पाए कि 17-18 की उम्र तक किस तरह उसका माइंडसेट डेवलप होता है जब वो स्कूल में होता है, देन आई वाज लाइक कि नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू, एंड अब 18+ के साथ हम काम कर सकते हाँ, तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन। हैं। हाँ, तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ हम आगे आए, क्योंकि हम्म। इंसान अचानक से बड़ा नहीं हो जाता है, वो एक एक साल करके ही बड़ा होता है। तो अगर हम 18+ के पास जा, अगर डायरेक्टली, मुझे लगता है कि डायरेक्टली हम इस एज ग्रुप को रीच करते तो उसमें शायद समझने में और समय लगता। पर क्योंकि हम जब इस प्रोसेस के थ्रू गए, सो देन आई दैट माय प्रोजेक्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लीट हुआ, एंड उसके बाद देन आई थिंक कि अब कुछ नया किया जाए, और नहीं, अब दैट्स आई 18+। आई यू मेक अ वेरी वेरी वैल्यूबल पॉइंट, बिकॉज उस समझ और इंसाइट के बिना वो ऑलमोस्ट एक
क्या मेरी सारी एनालॉजीज खाने से ही होती हैं? सो इट्स प्रोबेबली लाइक अटेम्प्टिंग टू मेक अ बिरयानी विदाउट फर्स्ट लर्निंग हाउ टू मेक द राइस। एक्चुअली बहुत ही बेहतर इसमें आपने इसे कैसे, हाँ। तो बिल्कुल वो उसी तरह से था। और फिर जब हम 18 प्लस के साथ स्टूडेंट्स के साथ काम करने गए, तो अब वो 18 तक का बच्चा किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, वी नो। बट अब कॉलेज के अंदर उसका माइंडसेट कैसे बिल्ड हो रहा है, दैट्स अ न्यू एनवायरनमेंट अगेन। क्योंकि फैमिली है, कई कई बच्चे डे स्कॉलर्स हैं, कुछ बच्चे हॉस्टलर्स हैं, तो वो घर से दूर भी हैं और बहुत दूर से भी हैं, कि साउथ इंडिया से हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो काफी काफी किलोमीटर्स, मतलब दो दो तीन तीन स्टेट्स, बहुत कल्चरल डिफरेंस है और वहां से आ रहे हैं। अब वो कॉलेज के अंदर कैसे सेटअप होंगे विद न्यू पीपल, विद न्यू कल्चर एंड क्लाइमेट एंड द डिसिप्लिन जो उन्होंने ऑप्ट किया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टैबू भी है और सवाल भी है कि अभी अब आगे पढ़ना क्या है। हम्म। और इस चीज पे बात करके कई बार उनको पेरेंट्स सजेशन देते हैं, कई बार रिलेटिव्स देते हैं, या घर में कोई एक व्यक्ति जो बहुत ऊंचे ओहदे पे या नौकरी पे है उसने जो कह दिया, फिर पूरा परिवार उसी को ही फॉलो करने लगता है, बिना ये सोचे कि शायद इस बच्चे का कैलिबर, इंटरेस्ट या पोटेंशियल कुछ और भी हो सकता है। वो मैथ्स में अच्छा है, पर शायद वो कोई और काम में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पर वो क्या चीज लॉन्ग टर्म कर पाएगा, इतना बिना थॉट उस समय दिए, और कोई ना कोई डिग्री में बच्चे एनरोल हो जाते हैं। और फिर जब वो कॉलेज में आते हैं, देन दे ट्राई न्यू थिंग्स एंड अडेप्ट द कल्चर, और कई बार उसमें उनका मन दुखी भी होता है, कई बार कंफ्यूज भी होता है, और बहुत से इश्यूज भी आते हैं। तो टू अंडरस्टैंड दैट, जब मैं यूनिवर्सिटी सेटिंग्स में गई काम करने, तो एक साल ऐसा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी बातचीत थी, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, आप रहिए यहाँ पे, तभी इस चीज को इम्बाइब कर पाएंगे। एंड आई वाज लाइक कि या ये काफी ठीक है। तो एक साल ऐसा था कि विद द स्टाफ अकोमोडेशन, तो मैं कैंपस में ही थी। तो दिन के समय में भी हम थे और शाम के समय में भी कई बार जब मैं टहल रही थी यूनिवर्सिटी में, या ऑब्जर्व कर रही थी कि बच्चों का माइंडसेट किस तरीके से काम करता है। एंड आफ्टर 1 ईयर आई आई यूजुअली डेली अप डाउन मैं करती हूँ टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि घर मेरा जयपुर में ही है। तो बच्चों के साथ जो हमने काम करना स्टार्ट किया, कि स्टार्टिंग में तो टैबू ही था, क्योंकि इन हाउस या फुल टाइम रोल में काउंसलर के तौर पे मैं ही वहां पे गई, उससे पहले कोई था नहीं। और उससे पहले एक एजेंसी थी जिसके थ्रू वो काउंसलिंग सेशंस लेते थे, और वंस इन अ वीक एक काउंसलर आती थी और फिर वो चली जाती थी। तो उससे बच्चों को इतना ही पता होता था कि अच्छा, कोई प्रॉब्लम है तो ही जाना है इनके पास बात करने, हम्म। ना प्रॉब्लम नहीं है तो बात नहीं कर सकते, है ना। अब क्योंकि वो पहले जो काउंसलर आती थी वो भी हफ्ते में एक बार ही आती थी, तो इतना ही अवेयरनेस एक व्यक्ति या एक जो भी जिससे भी वो कनेक्टेड थे, इतना ही हो सकता है। पोस्टर्स वगैरह लगे हुए रहते थे यूनिवर्सिटी में, बट फिर ये एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी बात है कि क्या मुझे कुछ बात करनी है या प्रॉब्लम है, तो आधे समय तो हम डिक्लाइन कर लेते कि नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि काउंसलर के पास जाना पड़े। तो वो टैबू बहुत बड़ा था जब मैं गई। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये मैम फुल टाइम काउंसलर हैं या ऐसा है, तो मैं कहूंगी कि वो वाइस वर्सा था, कि मैं स्टूडेंट्स बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही थी और वो काउंसलर को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्या ये व्यक्ति ऐसा है जिससे बात की जा सकती है, या फिर इससे दूर ही रहना चाहिए। तो तो उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने ऐड किए। जैसे कि हमारे जो वाइस चांसलर थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेस में भी खाना खाइए, और आप जाके आप बैठिए, आप देखिए, उन्हें भी आप पूरा मौका दें कि वो ऑब्जर्व कर पाए। वो जैसे ही कंफर्टेबल होंगे फिर बच्चे बात करने लगेंगे, क्योंकि उनके मन में बहुत सी चीजें होती है जो वो कहते नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल। तो वो जो वाइस चांसलर थे वो भी सर कई बार साथ में बच्चों के बैठ के खाना खाते थे, जैसे उनको टाइम मिलता था वंस इन अ मंथ। तो इस तरीके का एक कल्चर उस तरीके से हमने डेवलप करने की कोशिश की। तो विद इन आई थिंक 3 to 4 months, स्टूडेंट स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन है या उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा, हम्म। कि वो बात करने लगे, और वो सवाल करने लगे हम्म। कि अच्छा मैम, तो काउंसलिंग में तो क्या होता होगा, हम्म। है ना। कई बार रैंडम, कभी कभी बाहर कहीं बैठे हैं, तो वो काउंसलिंग रूम में आके ये सवाल नहीं करेंगे, वो बाहर बैठे बैठे करेंगे कि अच्छा, तो मैम क्या ही होता होगा।
तो बच्चे तो मैम सिर्फ प्रॉब्लम ही लेके आते होंगे ना, बहुत इशू हो जाता होगा तभी आते होंगे। हम्म। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि मेरा एक दोस्त है ऑफ ना। कोर्स। तो तो इस तरीके से उनके सवाल बाहर आने लगे, तो हमें लगा कि हाँ, नाउ द थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक, कि वो हम्म। सवाल करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। करेक्ट। और और ये जो टैबू है, इसको जाने में समय लगा, मतलब इट टेक्स फॉर अ ईयर आई थिंक, जिसमें बच्चे खुल के कहने लगे कि हाँ, अब हम आके बात कर सकते हैं। और तो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरे और ऑडियंस के समझने के की दृष्टि से, व्हेन यू से कि स्टिग्मा था या टैबू था, उसका वो किस तरह से दिख रहा था? वाज इट प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ कि लोग स्टूडेंट्स आना नहीं चाह रहे थे और फिर धीरे धीरे आने लगे? दैट वाज मेनली हाउ इट हैपेंड। हम्म। ठीक है, ठीक है। और स्टिग्मा और भी बहुत चीजों में दिखा, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों को, कुछ बच्चे पहले काउंसलिंग लेते थे, बट वो बताया नहीं उन्होंने किसी को कि हम काउंसलिंग लेते हैं, किसी को नहीं पता। हम्म। प्रोफेसर को पता है ना, उनके बैचमेट को, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता है। तो इट और वाज अ जैसे उनको पता सीक्रेट। चला, या इट्स अ टॉप सीक्रेट, या कि या ये तो किसी को नहीं बताएंगे। और जैसे उन्हें पता चला कि अच्छा अच्छा मैम चेंज हुई है, अभी न्यू मैम है, अभी क्या नाम से, तो नंबर सबको अवेलेबल था पोस्टर के अंदर कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो वो बहुत ही दबी हुई आवाज में वो बच्चा फोन करे कि मैम अच्छा कहाँ कहाँ कौन से रूम में काउंसलिंग हो रही है अभी, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। या फिर वो मैसेज कर रहा है कि ठीक है मैं आता हूँ, और हम्म वो ऑफिस में आ रहा है तो बाहर तक वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है कि मैं तो किसी काम से आया हूँ, इट्स हम्म। नॉट फॉर काउंसलिंग, एंड देन वो डायरेक्ट। तो उस तरह से वो एक टैबू था। और बच्चों में ही नहीं, हम ये कह सकते हैं स्टाफ में भी था, है ना। रिसेप्शन पे कोई व्यक्ति है, रिसेप्शनिस्ट है ना, या स्टाफ के और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ क्लरिकल वर्क है ऐसा। और तो उस टाइम पे काउंसलिंग रूम भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर ही एक रूम को हाँ। हुआ था। ऑल्दो यूनिवर्सिटी ने ये देखा कि वो रूम ऐसी जगह पर हो जहाँ पे हर कोई देखे नहीं कौन आ रहा है जा रहा है, बट पहले वो रूम उस तरीके से हुआ करता था। तो हम्म। बच्चा जब एंटर कर रहा है तो रिसेप्शनिस्ट को पता चल रहा है कि बच्चा आ रहा है, या अंदर जो क्लरिकल ऑफिस है उनको पता चल रहा है। तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश करते थे कि वो तो उन सर से मिलने आया है, वो तो ऐसा बात करने आया है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बिकॉज इट्स ये इसी के इसी इंक्वायरी का फर्दर डिटेल है। मोस्टली एडल्ट्स या ग्रोन अप्स के साथ अपनी कंट्री में ये बहुत होता है, पर्टिकुलरली विद मेन। जब लोगों को पता लगता है कि अ पर्सन इज गोइंग एंड सीकिंग सपोर्ट और हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो वो इट इज सीन एज ए साइन ऑफ वीकनेस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी इन टर्म्स ऑफ कि इन बच्चों को, आई अंडरस्टैंड स्टिग्मा और टैबू की वजह से दे वांटेड टू हाइड द फैक्ट दैट दे वर गोइंग, बट इन केस देयर पीयर ग्रुप गॉट टू नो कि वो जा रहे हैं, तो उनको वो किस तरह से देखते फिर? हम्म। तो इन इनिशियल टाइम का जब मैं बताती हूँ, तो पीयर ग्रुप का ये है कि अगर उनको पता चला अरे उसको तो कुछ दिक्कत हो गई है, वो तो बहुत ही उदास रहता है, वो तो डिप्रेशन में रहता है, तो जजमेंट ज्यादा आने लगा। और अगर कोई बच्चा समझ रहा है, तो वो जो पीयर ग्रुप है वो उसको भी नहीं समझेगा, दूसरे दोस्त को भी। मान लीजिए एक ग्रुप में 8 बच्चे हैं, एक काउंसलिंग के लिए जा रहा है, दूसरा समझ रहा है कि हाँ यार एक्चुअली कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम्म। ग्रेड्स कम हो गए। और वो बाकी सब तो अरे यू आर नॉट लाइक दैट, अगर लड़का है तो अरे भाई तुझे क्या दिक्कत है ना, माचो मैन वाली एक वो हम्म। पर्सनैलिटी है वो ब्रेक हो रही है, और तू तो हमारे ग्रुप का है और तुझे कब प्रॉब्लम हो गई, ऐसा। ठीक अगर है। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में भी अलग तरीके की बातें, और अगर कोएड ग्रुप है जिसमें दोनों ही हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसमें भी कई बार उसमें एक आध बच्चा होगा जो समझेगा, बाकी सब क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में है विद द एनवायरमेंट कि हमें थोड़ा ना कोई दिक्कत है। या फिर दोनों तरीके का है, एक्सट्रीम भी है कुछ, कि अरे मुझे भी प्रॉब्लम है, अरे मुझे भी प्रॉब्लम है, हम तो नहीं जा रहे ना, हम तो खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, वाई यू आर गोइंग, इससे कुछ भी नहीं होता, ये सब तो आजकल की बातें हैं, पहले से कौन से काउंसलर होते थे। तो इट्स मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स, और मल्टीपल वर्बिटम्स वी मेक रिसीव। सेंस, मेक सेंस। हाँ। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और फिर उसको ब्रेक करने के लिए कि इसको कैसे रीच आउट किया जाए,
तो हमने क्लास के अंदर जो बच्चों का पूरा ग्रुप है उनके साथ कुछ सेशंस करना स्टार्ट किया। हम्म एंड बिफोर दैट जो कॉलेज में एक्टिविटीज हो रही हैं, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है जो एक्टिविटीज कराते हैं, तो उनके साथ स्टार्टिंग में उसी के साथ हमारा मेंटल हेल्थ का जो विंग था वहीं साथ में ही था। तो कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई सेशन हो रहा है रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक कुछ भी, सीडीसी क्लब है जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट क्लब है, तो उसके साथ हमने कनेक्ट करके कुछ एक दो बातें समझाई उसी सेशन के साथ में। ऐसे ही म्यूजिक का कोई सेशन हो रहा है जिसमें बच्चे कुछ बैंड म्यूजिक कुछ है या कोई किसी को हमने बुलाया, तो उसके साथ जोड़ के हमने कुछ बातें समझा। तो मेरी प्रेजेंस जो है वो कुछ कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे हमने कोशिश की कि हम साथ में ला पाए जिससे वो टैबू हटे कि यार ये व्यक्ति जो है जब बहुत प्रॉब्लम होगी तभी हम इसके साथ बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी डोंट टॉक। हम्म हम्म तो वो एक कंफर्ट लेवल लेके आए धीरे धीरे कि वो बच्चे फेमिलियर हो विद द प्रेजेंस ऑफ द काउंसलर, और काउंसलर से आप काउंसलिंग से जुड़ी बात भी कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी मुद्दों पे भी आप पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज रिड्यूस हुई और फेमिलैरिटी जैसे ही उनकी थोड़ी सी इंप्रूव हुई, देन दे यूज टू कम। और वो आने लगे, फिर अपने दोस्तों को भी लेके आने लगे, जब एक हम्म बच्चे को दो बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट होने लगा, उनको लगा हम्म कि हाँ ये तो ऐसा नहीं है। और कई बार वो बोलती मैम बहुत प्रॉब्लम होने पे आना है या थोड़ा प्रॉब्लम होने पे आना है। मैंने हम्म कहा जुकाम होती है अपने को, सबको होती है बचपन से, है ना। ठंड का मौसम आया या कुछ थोड़ा सा डस्ट हुआ और आपको हम्म जुकाम हो गई, तो हल्की सी जुकाम है, अगर 2-3 दिन में ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 3 दिन से ज्यादा हो जाए तो आप डॉक्टर को जाके बोलते हो कि भाई हमें 2-3 जो बेसिक दवाई है वो आप बता दो क्या करना है, ठीक है। तो मैंने कहा 2 दिन अगर मूड खराब है और दोस्तों से बात करके विल बी हैप्पी और ठीक हो रहा है, तो इट मीन्स इट्स नॉर्मली मूड स्विंग। बट अगर 2-3 दिन से ज्यादा है, हफ्ता 2 हफ्ता आपको लग रहा है कि बहुत कुछ है और मैं कह नहीं पा रहा हूँ, तो आप आ जाओ, ठीक है। यू कैन कम, यू कैन टॉक। और वो हम देखते हैं कि एक सेशन 2 सेशन लगेंगे या उससे ज्यादा लगेंगे। मैंने कहा पर अगर आपने वेट किया जुकाम को निमोनिया बनने तक, हम्म तो जब तक निमोनिया ना बन जाए तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो वो जो 2 गोली से ठीक हो सकता था, अब पूरा ट्रीटमेंट लगेगा आपको। देन हो सकता है कि हम भी सिर्फ काउंसलिंग से या टॉक थेरेपी से उसको रिड्यूस ना कर पाए, वी हम्म कंसल्ट दी साइकाइट्रिस्ट और हमें एक्चुअल में आपको डॉक्टर के पास भेजना। तो मैंने कहा यही अंतर है। तो जुकाम ही होता है शुरुआत में, है ना। I think that's a lovely analogy to use and a lovely analogy to explain to people. Really हम्म nice. नेचुरली अगला सवाल ये होगा कि एंड मैं बिल्कुल, मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली एज एन एकेडमिक एक्सरसाइज ऑल्सो, यू नो, व्हाट आर सम more prevalent or common issues or problems you observed a significant number of students coming to you with? किस तरह के वो कंप्लेंट्स लेके आपके पास ज्यादातर आ रहे थे, आते हैं रादर? आते हैं। तो स्टूडेंट्स का मेजरली जो कंप्लेंट्स है, इट्स दी रिलेशनशिप विद देयर फैमिलीज, कि फैमिली में किस तरीके का उनका बॉन्डिंग है, वो उनका कई बार तो ये एक प्रॉब्लम आता है। देन हाउ अदर परसीव देम, हम्म पीयर ग्रुप उनको किस नजर से देख रहा है, और वो अपनी पब्लिक इमेज बनाने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, जब जो कि वो है नहीं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग में वो उस तरह, पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत है। तीसरा, बच्चों के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत क्राइसिस कंफ्यूजन और बिल्डिंग एक चीज चलती है। साथ ही में रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स, क्योंकि अभी वो कॉलेज कल्चर के हम्म स्टूडेंट, तो ये चीज बहुत सारी चीजें इनमें देखने को मिलती है। एंड हाउ दे, एंड हाँ, वन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। हम्म वो सोशल मीडिया कितना देख रहे हैं और उस वजह से क्या क्या प्रभाव उनकी लाइफ पे पड़ रहा है। हम्म देन प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर का जो टेंशन है वो बहुत प्रेवलेंट है। तो यूजुअली मेजर टेंशंस हैं, एंजाइटीज हैं,
है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसपे वो सैडनेस या डिप्रेशन पे जा सकते हैं, पर एंजाइटी बहुत है, टेंशन बहुत है। रिलेशनशिप्स को कैसे हम बैलेंस करें, वो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड कितना एक्सप्रेस करना है। कहीं हमने कह दिया सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, कहीं इसलिए वो मुझसे फ्रेंडशिप तो नहीं तोड़ देगा। इस वजह से ना वो खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनसे बच्चे बहुत ज्यादा आसपास घिरे हुए हैं अभी। दूसरा एक फियर भी है, हम्म। फियर ऑफ जजमेंट बहुत है, कि किसी फियर ने ऑफ। फियर ऑफ जजमेंट, हम्म। कैसे मुझे जज किया जाएगा, तो मैं वैसा ही रिएक्ट करूं जैसा वो चाहते हैं, मैं वैसा रिएक्ट नहीं करूं जैसा मुझे लग रहा है। तो ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दी वेरी बेसिक रूममेट के साथ, कि हॉस्टल में रूममेट है, रूममेट तो ऐसे कह रही है, मैं ऐसा कह रही हूँ, या बॉयज में भी बहुत चीजें होती है। तो फिर उसके बाद वो पीयर ग्रुप में आ जाता है, क्लास में आ जाता है, समटाइम्स इट गोज टू द प्रोफेसर्स एंड द अदर पीपल। तो उनका जो इमेज बिल्डिंग है, सेल्फ इमेज जो है या सेल्फ एस्टीम जो है, उसमें बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। और हम्म। क्योंकि ये जो एज ग्रुप है, ये है 18 से 24 साल के बीच का, 18 to 24। तो इसमें वो बिल्डिंग भी अपने आप को बनाने की कोशिश में भी है, और वो बार बार क्रैश डाउन भी हो रहा है। और कई बार खुद से नहीं हो रहा है, वो लोगों के जजमेंट को सुन के हो रहा है, या हमारी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, या हमने अपनी जिंदगी कुछ और सोची थी, अभी कुछ और है। तो ये सब चीजें एक एकदम यंग अडल्ट के दिमाग में जो आ रही है, जो पढ़ रहा है कॉलेज में, दीज आर द थिंग्स। इसको मैं अगर आपसे स्लाइटली डीपर या फिलोसॉफिकल तरह से पूछूं, द वे आई अंडरस्टैंड दिस इज कि जब कोई व्यक्ति इतना प्रभावित और इन्फ्लुएंस हो जाता है जजमेंट को लेके, या पीयर ग्रुप क्या सोचेगा, या फैमिली क्या सोचेगी, या सोसाइटी क्या सोचेगी, कहीं ना कहीं it could possibly be because he or she is not a very self-confident nahi, but not a very well-defined individual. I don't think that he or she knows themselves very well, or has accepted that version fully. Did you find that some of these points of conflict, particularly when it comes to being influenced and fear of being judged, कि उसको मेरे दोस्तों को ये फनी लग रहा है, मुझे तो लगा ये बड़ा मीन था, पर आई मस्ट ऑल्सो लाफ, टाइप ऑफ थिंग हैपेंस, ये जो मॉब मेंटालिटी बन जाती है, ये कहीं ना कहीं उस कारण से है कि हमें अपने आप में स्वयं में इतना विश्वास नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत ही मेजर फैक्टर है कि स्वयं में इतना विश्वास नहीं है, या फिर विश्वास करने की कोशिश में है वो, हम्म। पर वो बार बार ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट के लिए या विश्वास के लिए वैलिडेशन देख रहा है बाहर। और हम्म। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, वो उसे मोल्ड कर रहे हैं, या वो खुद भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, नोइंगली अननोइंगली, शायद उन्हें भी नहीं पता, बट वो खुद भी इन्फ्लुएंस्ड है, और वो एक ही ढांचे में सबको डालना चाहते हम्म। हैं। और इन अदर वर्ड्स, वो जिन चीजों को या जिन क्वालिटीज को वैलिडेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली है नहीं। हम्म। जिन चीजों को वो वैलिडेट कर रहे हैं वो नहीं है। जैसे कुछ स्लैंग्स आजकल बच्चे यूज करते हैं, स्टूडेंट्स हम्म। यूज करते हैं कॉलेज के, है ना। तो अब वो जो स्लैंग है, वो कहीं मूवी में देखा है, या कोई यूट्यूब, किसी यूट्यूबर ने कहा है और वो बहुत फेमस हो गया, कोई रील बहुत फेमस हो गई, अब वो उसे बोल रहे हैं। उसका अर्थ अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है। यदि उसका अर्थ अच्छा नहीं भी है और वो हर्टफुल है, जैसे आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसने मुझे क्या कह दिया, पर क्योंकि वो फैशन है, क्योंकि वो स्टाइल है, और आपका स्टाइल स्टेटस डाउन हो जाएगा अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लोग आपको बोलेंगे कि तू तो बहुत पुराने जमाने का है, ओ यू आर अ वेरी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा। तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, बट वो उसको हर्ट भी कर रहा है। और सोशल ये मीडिया, सॉरी सॉरी, प्लीज कंप्लीट। और ये जो चीजें हैं, ये एक एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन हम्म। की बात है। और ये डेवलप होते होते कई बार इतना, जब वो एकदम पाइल अप हो जाता है,
जो इंसान है उसे खुद को भी महसूस होगा कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे किसी दोस्त से बात करने का मन नहीं हो रहा, मुझे क्लास जाने का मन नहीं हो रहा, मैं बस अपने रूम में ही रहना चाहता हूँ, मैं बेड पे लेटे रहना चाहता हूँ। तो दीज आर बेसिक, बहुत ही माइल्ड सिम्टम स्टार्ट होते हैं, बट ये डिप्रेशन के सिम्टम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल हाँ, सकते but हैं। I think in लाइक what in the सोशल मीडिया। context we are talking, I think it probably gets to that stage because the person realizes that they are basically living a lie. हम्म। वो अपना ऑथेंटिक सेल्फ जी ही नहीं रहे हैं। हम्म। और ऑथेंटिक सेल्फ है क्या, अभी तो उसको हाँ, एग्जैक्टली। खोजने, हाँ, वो खोजा नहीं गया है। और जो है वो खुशी नहीं दे रहा है, हम्म। बीच मझधार में है वो कि अब कहाँ जाए, ऐसा। मेरे बहुत सारे सवाल हैं। क्विकली आई विल आस्क ओनली द वंस दैट आर एब्सोल्युटली रेलेवेंट। You very correctly said, because this is something I also observe in my teaching practice, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। हम पे ही पड़ता है, उन पे तो पड़ेगा ही। Do you find a similar kind of influence being exerted by जिसे हम widely popular culture कहते हैं, films etc? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फिल्म लाइक कबीर सिंह कम्स आउट तो बहुत ब्रूहाहा होता है कि अरे वो यंग अडल्ट्स पे क्या वो होगा और क्या असर होगा और क्या उन पे ये होगा। इज इट सिमिलरली इन्फ्लुएंसिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री, या सोशल मीडिया और सबसे अब एकदम टॉप पे आ गया है? हम्म। इन्फ्लुएंस तो आता है, वो बहुत बहुत मेजर है, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हम बनने लगते हैं, वो हमारे अंदर बनने लगता है। तो इस तरीके की फिल्म्स या इस तरीके का कंटेंट जिसमें वायलेंस है, जिसमें अब्यूज है, अब्यूज डजंट मीन कि फिजिकल हाँ वायलेंस हाँ, हो, बिल्कुल। इट्स वर्बल अब्यूज ऑल्सो, कि बहुत इमोशनल, गाली, हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत इमोशनल अब्यूज है, या बहुत ही आप गिल्ट की बहुत फीलिंग है, या ऐसी फीलिंग है जो आपको अ, अपने साथ रहने पर भी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ कई बार ये भी होता है, इंसान अकेले नहीं रहना चाहता, वो सिर्फ भीड़ में रहना चाहता है, और वो अकेले हम्म। जब रहता है तो वो या तो खाना खा के सो जाता है, या वो फोन देखता है और वो फिर सो जाता है, तो वो सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके का जो कंटेंट है वो अभी के टाइम में एक्सेस हो गया है थोड़ा। पहले के टाइम पे क्योंकि उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, सबके हाथ में फोन नहीं था, सबके घर में टीवी था जिसमें एक कुछ जो भी कार्यक्रम आता था वो गवर्नमेंट के थ्रू आता था, और वो कितनी देर दिखाया जाएगा, और सब अच्छा, साथ प्लस में इतने परिवार के ही, बैठ के लाइक यू सेड, इतने ही सदस्य घर पे, टेलीविजन केवल एक, तो वैसे भी वो शेयर्ड डिवाइस होता था। उसमें भी हम्म। फिर ऑब्वियसली पापा मम्मी का ज्यादा चलता था, सो मेनी फैक्टर्स वर देयर। हम्म। तो जो एक यंगर एज की हम बात करें कि 18 से नीचे का जो बच्चा है, वो घर में टीवी देख रहा है, तो एक पॉइंट तक उसके मन में वो सब जो इमोशनल टर्मोइल जो सोशल मीडिया या इस तरह के कंटेंट से आ सकता है, उस पर थोड़ी सी रोक थी पहले। अच्छा, सोशल मीडिया इज नॉट ओनली बैड, इट्स ऑल्सो गुड। बहुत हम्म। सारी नई इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, बहुत सी चीजें जो, और जरूरी नहीं है हर चीज की एक्सेप्टेंस हर फैमिली में दी जाए। हम्म। हो सकता है वो बच्चा कुछ बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखना चाह रहा हो, और घर वालों को वो लगता है कि इट्स क्या काम का है, ये क्या चीज देख रहे हो तुम, और वो टीवी पे उसको देखने को अवेलेबल नहीं है, तो वो अभी के टाइम पे सोशल मीडिया में है। पर वो समझ उसके अंदर उतनी विकसित होना जरूरी है कि वो जो देखना चाह रहा है उससे वो क्या करना चाह रहा है, क्या कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहा है, उस पर कोई बात करना चाह रहा है, और आउट ऑफ क्यूरोसिटी देख रहा है, या उससे जुड़े वो सवाल भी पूछे किसी से। तो सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन बहुत आ गया, पर उस इंफॉर्मेशन को सुलझाना कैसे है अब। और पहले, और अगर अभी भी फोन के अंदर अगर हम 30 मिनट का कोई एक वीडियो देख रहे हैं, या हम 15 मिनट का एक वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी एक फ्लो में है, एक बातचीत में है, एक उसके साथ है, रिदम के साथ है, तो वो अंदर कुछ जाएगा। पर हम जब 1 मिनट का रील स्वाइप कर रहे हैं, एंड वी स्वाइप ऑलमोस्ट 100 रील्स, अब कितना अंदर गया है, अभी वो जो भी कंटेंट है, कंटेंट से ज्यादा डिस्टरबेंस अंदर गया है, बहुत सारी आवाजें गई हैं जो कान पे टकराई हैं, हमारे ब्रेन में वो इमेजेस टकराई हैं, और वो बिखर गई हैं। हाँ, तो वो आई थिंक इट इज गोइंग इन एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, इट इज नॉट गोइंग इन विद एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ, बिकॉज
आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो जब भी मैं पेरेंट्स को कहता हूँ या वो देखते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वेज में ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने आप के अंदर देखें, पूछें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, सेल्फ डिस्कवरी करें, तो वो तो मुझे लॉट्स ऑफ फैमिलीज में पेरेंट्स स्ट्रेट टेल मी कि अरे साहब आप तो बागी बना रहे हैं, आप तो रेबल्स बना रहे हैं हमारे बच्चों को। सो देर इज ऑफ कोर्स दैट एलिमेंट ऑफ how a particular individual or a particular family is perceiving content and then labeling it as good or bad. एक्चुअली वहां पे Uh, एक चीज जरूर ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। और बिना उन्हें, क्योंकि कुछ फैमिलीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, नहीं हमें बात करने की जरूरत नहीं है। इस पे मैं कुछ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि एक बच्चा हमारे यहाँ पे था। तो उसकी फैमिली जो है, इट्स अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, बट जो फैमिली है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, बिजनेस फैमिली है। और उनका माइंडसेट है कि टू मेक मनी, टू प्रोड्यूस आवर बिजनेस ऑन अ मोर लार्जर लेवल। और एकदम प्रॉपर मारवाड़ी फैमिली है। तो वही ट्रेडिशनल जो रहना खाना पीना वो सारा। और वो जो स्टूडेंट है वो आया यहाँ पे डिजाइन के अंदर, उसने एनरोल किया क्योंकि उसमें कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स थे और उसको कुछ क्रिएट करना पसंद था और इस तरह से। तो जब वो डिजाइन, तो फॉर फर्स्ट ईयर फॉर सेकेंड ईयर ही स्ट्रगल्ड अ लॉट विद इमोशनली इन हिज सेल्फ। और घर वालों को ये समझाने में कि मैं इसमें करूंगा क्या आगे। और घर, और उसको खुद को समझने में भी, क्योंकि घर वाले तो बहुत चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि तुमने ले तो दिया, पता नहीं क्या करेगा, कोई बात नहीं बेटा, तू 4 साल की डिग्री कर ले तो घर पे आप अपने तो अपनी दुकान का काम कर लेंगे, अपना बिजनेस है अपन और बड़ा कर लेंगे उसको। और वो उस चीज से और परेशान होता है कि अरे ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और उसका सेल्फ डाउट और बढ़ गया कि शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, शायद मैं ही नहीं समझा पा रहा, मेरे मम्मी पापा हैं बचपन से मुझे इतना मेरा ध्यान रखा, अभी ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है मैंने ही गलती कर दी। hmm. और इतना उसका इमोशनल सफोकेशन बढ़ गया कि उस बच्चे को पैनिक अटैक आने लगे। और वो एक बार दो बार हुआ, पता चला, हमने बात की, तो उसने बोला नहीं घर पे मत बताना मैम, घर पे नहीं बताना। तो हमने कुछ उसको कुछ ट्रीटमेंट्स दिए और सेशंस चले, और वो काफी थोड़ा नॉर्मल भी होने लगा। बट क्योंकि वो डे स्कॉलर था तो वो रोज घर पे जा रहा था और फिर वही कल्चर और उस तरीके का माइंडसेट, और फिर वो आ रहा था। तो कुछ दिन तो ठीक निकले, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो वापस से किसी बात को लेकर टेंस था शायद, है ना, और वो उसने किसी से कहा नहीं, और फिर से उसको पैनिक अटैक ऐसा कुछ आया और वो बहुत घबराहट उसको हुई और वो एकदम हाथ पांव से फूल गए और वो बेहोश हो गया। और तब वो अपनी फैकल्टी के साथ था, उसके प्रोफेसर Hmm. साथ में थे। Hmm. तो उनको लगा कि ये तो बहुत मेजर चीज क्या हुआ है, तो उन्होंने डायरेक्टली फैमिली को Oh. और फोन करके बुलाया, और फैमिली घबरा गई। देन प्रोफेसर कनेक्टेड मी कि मैम हमने कह तो दिया, बट हमें अभी पता चला कि फैमिली बहुत डिफरेंट है और वो एक्सेप्ट Hmm. नहीं है, हमें नहीं पता था ये बात। हमें लगा कि ये तो हमें कहना Hmm. चाहिए Hmm. Hmm. इंस्टीट्यूट, Hmm. Hmm. ठीक है, कि अब उन्हें बुलाया है, वो आ रहे हैं, अब क्या किया जाए, हम भी बात करते हैं। तो मैंने कहा आप बात करिए और फिर मैं भी बात करती हूँ, तो कि हाँ कि हम साथ में ही करेंगे तो शायद उस बच्चे को थोड़ा सपोर्ट लगे। तो जब पहली बार उसके पेरेंट्स मिले तो मदर इज समथिंग कि वो बच्चे की टेंशन है, तो मदर इज लाइक आप तो मैम बता दो हम क्या करें, हम कर देंगे। एंड फादर इज समथिंग कि मैडम अब आप तो आजकल के लोग हो, नए नए सब्जेक्ट पढ़ के आ गए हैं। और पर तो उनसे लगभग 1 से 1.5 घंटा बातचीत हुई मेरी। बातचीत इस रूप में कि आपको कैसा लगता है, आपने जब सोचा इसको कॉलेज में एडमिशन दिलाया तो आप क्या चाह रहे थे, अच्छा तो आप परिवार में कितने लोग हैं, अच्छा तो आपको भी प्रॉब्लम आ रही होगी, अच्छा आप भी टेंस रहते होंगे, हाँ बच्चा भी रहता है। तो जब इतनी बातचीत हुई देन दे यूज टू नो कि यार नहीं ये मैडम ऐसी तो नहीं है कि नहीं समझेंगी, ये कुछ कुछ समझ तो जाएंगी शायद। तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सप्लोरेशन ही नहीं था, या उन्हें पता ही नहीं था कि काउंसलर ऐसा आदमी नहीं है जो आके आपको ये बोलेगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आपको कुछ नहीं आता और मैं ये 4 लाइन दे रहा हूँ और आप ये कर लो और ये दवाई है और ये सब कुछ है। तो वो भी बहुत मिसकंसेप्शन था। और एक बार बात करने के बाद देन उसकी मदर को मैंने कहा आपको कभी लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऑफिस आवर्स है उससे। ठीक है मैम। उसकी मदर को हमने कांटेक्ट नंबर दिया, फिर वो मम्मी ने 2-3 बार फोन किया। अभी तो ठीक है ना वो, अभी हम हमसे तो ठीक से बात कर रहा है।
तो वो एक रिलेशन बिल्ड हुआ कि वो पेरेंट्स को लगने लगा कि हाँ, इनसे हम बात कर सकते हैं। और जो प्रोफेसर है उनको भी, उन्होंने भी अपना नंबर दिया उसके फादर को कि सर आप मुझसे बात कर सकते हैं। देन वो सेमेस्टर जब होने लगा, तब हमें लगा कि वो बच्चा अगर यहाँ, और वो खुद भी कह रहा था बहुत टाइम से कि मुझे अगर हॉस्टल में रहने की परमिशन मिल जाए तो मैं शायद थोड़ा सा फ्री माइंडेडली काम कर पाऊंगा। और टाइम का वर्कलोड थोड़ा बढ़ भी जाता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो इंस्टीट्यूट भी उनको रेकमेंड करता है कई बार कि आप यहीं बैठ के अपने प्रोजेक्ट करें। उसके बाद वो पेरेंट्स 2 से 3 बार मिलने आए, और प्रोफेसर से भी मिले और हमसे भी मिले, और उसके बाद उनका जब इतना ट्रस्ट लेवल बना कि हाँ चलिए अब इसको हम यहाँ पे भेज सकते हैं, तो वो फिर उन्होंने उसको हॉस्टल में रखा, और फिर वो सैटरडे संडे घर चला जाता था, और उसने अपने प्रोजेक्ट्स भी किए, इम्प्रूवमेंट भी आया, सब चीजें धीरे धीरे, फ्रेंडशिप्स भी उसकी ठीक होने लगी। और ऑल्दो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत 100% हमने पूरा केस सॉल्व राइट, कर, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम हाँ, सब ह्यूमन हैं, और वो सब एरर्स, छोटी छोटी एरर्स हर जगह आती हैं। पर जितना स्ट्रगल वो देख रहा था बच्चा, वो जो स्टूडेंट था, वो काफी हद तक उस स्ट्रगल से बाहर आ पाया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो पाया, वो एक्सरसाइज करने लगा, उसका अपने खुद को देखने की जो पर्सनालिटी जो वो चाह रहा था वो भी उसकी बिल्ड हो पाई। तो और विद द एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली, yeah. तो मुझे लगता है। Which was actually the main point, because it's so important to have the parents or the family on board. और आप तो you are very सभ्य person, मैं नहीं हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इनफैक्ट इतना मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेके, दैट आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ अस हु फील कि अरे ये तो कोई एलियंस किसी और प्लेनेट से ही आए हैं। सो पहले तो उनको ये एहसास हो कि भाई हम तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, और एंड वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी हैव शेयर्ड गोल्स, वी ऑल वांट good for the child or for the student, all of those things, because I think a lot of parents and families approach it as if it's a match, as if it's them versus us. तो वो सारी चीजें पहले दूर करना, and a certain amount of orientation with the families and parents is very very important. हम्म। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही कि हम अलग अलग टीम में हैं, है ना, कि हम देम वर्सेस अस। तो वो वास्तव में हमें देखने को मिला बहुत बार, और जब हम बात करने लगे तो मैंने कहा कि हम सब तो साथ हैं, हमें सपोर्ट करना है स्टूडेंट को। आपका बच्चा है, आप बेहतर रूप में जानते हैं उसको। हम कॉलेज की तरफ से प्रोफेशनली और वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्डअप करता है उसमें हम उसको सपोर्ट करेंगे। देन दे एक्चुअली रियलाइज्ड कि हाँ, हम सब तो सेम टीम में ही हैं, मतलब हमारा फोकस स्टूडेंट है और आपका फोकस आपका बच्चा है, और उसी पे हम बात कर रहे हैं, और आप भी भला चाह रहे हैं और हम भी भला चाह रहे हैं। तो Yeah. व्हेन दे रियलाइज कलेक्टिवली कि हाँ, हम तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए है ना, तो देन दे रियलाइज कि हाँ। पर इसमें मैं एक चीज ये कहूंगी कि अच्छी बात इसमें ये थी कि वो पेरेंट्स मिलने आए। Hmm. वो उन्होंने सोचा कि कोई मतलब काम के लोग नहीं है, पर फिर भी चलो चल चलते हैं, इतना भी अगर है तो बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि एक आधा केसेस ऐसे थे जिसमें पेरेंट मिलने नहीं आए। हाँ, बट आई थिंक इसमें ये मैं आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स, बट आई थिंक इट्स सेफ टू अस्यूम कि वो फाइनली आए बिकॉज वो उनके उनके परसेप्शन में वो बहुत सीरियस मैटर हो गया, बिकॉज ऑफ द होल पैनिक अटैक बीइंग रिपोर्टेड टू हम्म। देम। तो जब बच्चे के हेल्थ पे आ जाता है, देन फाइनली तब। पेरेंट्स वेक अप एंड गो। हम्म। अगर वो मान लीजिए, आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ फीलिंग दैट इफ द पैनिक अटैक डिडंट हैपन, या ये उनको रिपोर्ट नहीं किया गया होता, एंड ऐसे ही हम्म। जैसे चल रहा था चलता, दे मे नॉट हैव कम। एब्सोल्युटली। और उससे पहले हम कहना भी चाह रहे थे, उससे जस्ट पहले जब एक बार हमको पता चला कि इसको ऐसा हुआ है, एक बार दो बार, तब भी वो स्टूडेंट खुद ऐसा हो गया कि नहीं प्लीज आप, नहीं आप उनको नहीं कहना है। और क्योंकि वो एक यंग अडल्ट है, और उस तरह से हमने फिर उसको ब्रीच नहीं किया, हमने कहा ठीक है, एक बार दो बार है तो हम आपके साथ ही काम करेंगे अभी। करेक्ट, तो करेक्ट। जैसे ही हमको लगेगा कि अगर एक बार और हुआ देन विल रीच आउट। और वो एक हम्म। बार जब और हुआ तो वो मेरे मेरे थ्रू रीच आउट नहीं हुआ, बट वो इंस्टीट्यूट ने ही रीच आउट कर दिया कि ऐसे। तो वो समय था कि मतलब रीच आउट करना ही था।
Khair, it was a blessing in disguise finally. So, all is well that ends well. मुझे कुछ आपसे इस बारे में बात करना था, but I'm going to now keep that for another time because उसको मुझे ऐसे superficial तौर पे बस नहीं छूना है because you are also a arts therapist. And Hmm. I definitely had some questions around that, but maybe we'll do another session dedicated to that. Right Hmm. now, for concluding this particular dialogue, Pallavi, I want to ask you ki, now you happen to be at your university. वहाँ पे एक अच्छा आप लोग का system set up हो गया है. It's still very rare in our country. And a vast majority of students एक न एक कारण से और अनेक कारणों से वो प्रोफेशनल्स की का सपोर्ट और गाइडेंस नहीं ले पाते हैं. Hmm. मुझे ये पूछना है कि उन तमाम बच्चों के लिए ऐसे क्या क्या एक दो तीन चार सजेशंस हो सकते हैं विच में हेल्प देम टू गो थ्रू दिस वेरी वेरी potentially stressful years of college going into work life. ऐसे तीन चार सुझाव जो वो बाय themselves कर सकें. Hmm. Hmm. सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे हैं जो अभी अपने आप को और खोजने के रास्ते पे हैं, और स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, एंड दे जस्ट वांट टू फिगर आउट कि अभी चीजें क्या होने वाली है क्या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप कितने सेटिस्फाइड हैं, एंड जो काम है उससे और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे. तो इट्स इंट्रोस्पेक्शन, इट्स सेल्फ एनालिसिस, है ना. किसी और से बात करने के साथ अपने आप से भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है. हम्म. और उसमें ये है कि दैट यू कैन एक्सप्रेस इट आउट योर सेल्फ ऑन सम पेन एंड पेपर. आप डायरी लिख सकते हैं या फ्री राइटिंग भी कर सकते हैं. तो डायरी लिखना इज समथिंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. सेकेंडली, इफ यू फील स्ट्रेस्ड आउट और मोर एंजाइटी, और ऐसा लग रहा है कि कह नहीं पा रहे हैं या आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा है ऑन योर चेस्ट, विच इज एक्चुअली हैपेंड व्हेन यू कांट स्पोक अप टू योर फीलिंग्स. तो उस टाइम पे फ्री राइटिंग इज वन ऑफ द टेक्निक वेर यू हम्म. कैन टेक न्यूज पेपर एंड यू जस्ट राइट इट डाउन ऑल द थिंग्स वट एवर यू हैव इन योर हेड, and just crush that paper and dump it in the dustbin or you burn it out. तो ये कुछ एक दो टेक्निक्स हैं जो की जा सकती हैं. अपनी कोई एक हॉबी या कोई एक इंटरेस्ट जो आपको बहुत पसंद है फ्रॉम द कोर, वो जरूर लगातार आप करते रहें. क्योंकि सब कुछ आएगा सब कुछ जाएगा, पर जो चीज आपको पसंद है वो अगर आप करना छोड़ देंगे तो अंदर से आपका कुछ एक चीज है जो बहुत सफोकेट होगा. आपका हम्म. अपने अंदर का एक जो सेल्फ है वो सफोकेट होगा. सो इफ यू आर परसुइंग अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी साइंटिफिक डिग्री, एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग और इन गार्डनिंग और इन समथिंग आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, पेंटिंग, तो जरूर करें. आप आधा घंटा निकाल के कर सकते हैं. आपका जो डिग्री है वो इम्पैक्ट नहीं होगा उससे ना. और अपना जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को, अपनी आइडेंटिटी को किसी एक चीज से स्टक ना करें कि ये डिग्री हो जाएगी और मुझे इसका टैग मिल जाएगा, देन ओनली आई गेट टू नो. So don't tag or don't attach your identity with one thing. हम्म. Explore yourself whenever you get time, and communicate. Communicate with your peers, with your friends, those people जिनके साथ आपको सेफ फील होता है एंड यू फील लाइक कि हाँ इनके साथ मैं बात कर सकता हूँ. एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद योर फैमिली व्हाट यू आर प्लानिंग, व्हाट यू हैव इन योर हेड. अगर आपको लगता है कि वो शायद उतना एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही कहने लगे, पर कहने जरूर लगे कि उनको पता चले कि हमारे बच्चे के मन में आखिर चल क्या रहा है, या वो हम्म. किस तरीके की थॉट रखता है. क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं कहेंगे तो वो सप्रेस्ड हो जाएगा, और बहुत ज्यादा झगड़े के रूप में वो अगर निकल के कहेंगे तो फिर वो डिस्प्यूट रहेगा, तो भी वो कंसंट्रेशन तो डिविएट होगा ही जो भी आप करना चाह रहे हैं या जो भी चीजें हैं. तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स. और एंड इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्थ, कि लगातार पानी पिए एंड टेक अ गुड स्लीप ऑफ 7 to 8 hours.
और अगर एग्जाम टाइम है और कम सोना चाह रहे हैं तो भी 6 घंटा तो सोए ही सही, क्योंकि रिलैक्सेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट. Plus, for your social media and phone handling, there is a feature called digital well-being करेक्ट in करेक्ट. everybody's phone. So, आप देखें कि किस तरह से आप कितना कोई ऐप को यूज कर रहे हैं, एंड यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ 4 घंटा इंस्टाग्राम चलाया है, उसमें कितना जरूरी था कितना नहीं था. तो हम्म. उसको एक कंट्रोल करने का थोड़ा सा एक सेल्फ कंट्रोल जो होगा वो विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो दीज आर सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम रेगुलरली अपने लाइफ में देख सकते हैं. और मैं इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में वापस से बता देती हूँ कि वन हॉबी और वन इंटरेस्ट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसमें आप सेल्फ एनालिसिस करें थ्रू राइटिंग, कम्युनिकेट एंड टेक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. रेगुलर पानी पीते रहें, टाइम पे मील्स लें, एंड आप नींद पूरी करें. दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो एक रेगुलर वेलबींग के लिए जरूरी है. एंड टेक केयर ऑफ योर डिजिटल यूजेज. या ऑल वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस. लाइफ में सबसे इफेक्टिव एडवाइस होती ही सबसे सिंपल एडवाइस है. क्योंकि अपन कॉलेज किड्स की बात कर रहे हैं, एंड फॉर अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स इट इज रियली द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स where they experience romantic relationships etc. ऐसा बहुत सुनने में आता है. बहुत पेरेंट्स की ये राय रहती है कि अरे अरे ये सब बकवास है, डिस्ट्रैक्शन है, दिस दैट इन द अदर. क्या ये सवाल इन द फर्स्ट प्लेस वाजिब है कि अगर इज getting involved romantically in a relationship at this stage and phase of life a good thing or a bad thing? हम्म. सवाल बिल्कुल ये सवाल इस जगह तो आता ही है जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं और एकदम यंग अडल्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर ह्यूमन बिहेवियर. जब आप ग्रोन अप हो रहे होते हैं कि you'll find some feelings for the other gender, और एक अट्रैक्शन का फेज आता है एंड वो सब चीजें हैं. उसमें ये सही है कि नहीं है, वैसा ही है जैसा हम फोन चलाते हैं, कि Hmm. फोन चलाना सही है या नहीं है ना. खाना खाना सही है या नहीं है. तो खाना बहुत ज्यादा खाएंगे, बहुत डिस्टर्ब्ड कैलोरीज के साथ खाएंगे तो बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है. पर वो जरूरी तो है. तो कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या आपको सूट करता है, क्या आपको सूट नहीं करता है, वो देखते हुए खाना है. कि हो सकता है कि मैं ठंडा कुछ खाती हूँ तो मेरी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो सूट. पर कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ठंडा पानी पी लेता है तो शायद उसका गला बहुत जल्दी बैठ जाता है. तो इट्स अबाउट व्हाट सूट्स यू. एंड सेम विद द यूजेज ऑफ फोन, कि आप कितना देखते हैं, क्या देखते हैं. इट्स अबाउट कि किस तरह के लोगों के साथ आप हैं. एंड अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो उसके पीछे का माइंडसेट, ट्रिगर, पर्पस क्या रहा. हाँ, सो आई थिंक यू वही मैं आपसे पूछने वाला था दैट आई सपोज एट सम लेवल अगर थोड़ा सा टेक्निकली बोलें तो क्या वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायनामिक जो दो लोग हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इंस्पायरिंग है, क्या वो कोडिपेंडेंट हैं, कैसे हैं वो, उस पे भी निर्भर है? निर्भर करता है कि कॉलेज में आके गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बना ली या बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बना लिया क्योंकि बताना था औरों को कि मैं भी बना सकता हूँ या हम्म. बना सकती हूँ, हम्म. या फिर इसलिए बना लिया क्योंकि किसी से बात नहीं होती और ये एक इंसान है, इससे बात होती है और ये समझ जाता है तो सब कुछ इसी को ही बता देता हूँ, किसी को बताने की ही जरूरत नहीं है. ना दोस्तों को कहूंगा ना घर वालों को कहूंगा. सिर्फ अगर इस तरीके का है तो वो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं हम्म. आएगा, क्योंकि हम्म. पहली चीज तो हम्म. ये थी कि आपको तो पब्लिक शो ऑफ और अपनी आइडेंटिटी बिल्डिंग में ही आपने रिलेशनशिप को डाल लिया. राइट. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड है एंड वो रोज आपसे मिलती है तो लोगों को देख के लगता है कि वाह क्या बात है, इसलिए आपने बना लिया. पर जब आप वास्तव में इंसान के तौर पे उसे जानेंगे, वो आपको जानेगी और हो सकता है कि आपकी माइंडसेट मैच ही नहीं करे, हम्म. उतना हम्म. एक्सपेक्टेशन मैच ही नहीं करे, और फिर आप
फिर उसके बाद ब्रेकअप और हो ये गया। सारी चीजें उस दौरान और उस फेज में होना स्वाभाविक भी है, बिकॉज इट्स फॉर सो मेनी ऑफ अस it's the first time that we are going to embark on these kind of relationships and experiences. तो ये भी होता है। ये तो है नहीं कि मतलब पहली बार ही मतलब हमारे में इतनी मेच्योरिटी और समझ होगी कि वी गेट इट एब्सोल्युटली राइट। हम्म। पर उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास हो जिससे वो बात कर पाए ना, तो वो शायद अपने आप को और फाइंड आउट कर पाएंगे हम्म और फिगर हम्म आउट कर पाएंगे हम्म कि इसको मैं गर्लफ्रेंड कह तो रहा हूँ या इसके साथ मैं घूम तो रहा हूँ, पर मुझे वास्तव में ये कितनी पसंद है, या हम्म वास्तव में हमारा कनेक्शन कितना है। हम्म। सिर्फ एक शैलो बॉन्ड है टू शो द पीपल, और करेक्ट वी करेक्ट। रियली, हाँ। तो वो उन चीजों पर बात होना बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट से हम साथ में हैं, या एक जेन्युइन बॉन्ड है कि अच्छे दोस्त रहे या जानते थे, और फिर आप, और वो इंसान अगर वो सपोर्टिव हैं एक दूसरे को लेके, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप 19 साल की उम्र में मिले, आप 20 की उम्र में मिले, और आप रिलेशनशिप में हैं और आप एक दूसरे से बहुत, आप इमोशनल बॉन्डिंग है, प्यार करते हैं, पर आप ना एक दूसरे को ना हर्ट कर रहे हैं उस तरीके से, ना एक दूसरे की एनर्जी को उस तरह से ड्रेन कर रहे हैं कि आप अकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप बाकी चीजें नहीं कर पा रहे। तो अगर वो सपोर्टिव फॉर्म में है, जेन्युइन बॉन्ड है, तो इट विल सपोर्ट यू इन ऑल फॉर्म्स। बट वो समझना उस पॉइंट पे, वो उतना अंडरस्टैंडिंग आना, या उतना जेन्युइन रहना, क्योंकि जेन्युइन रहना बहुत जरूरी है जेन्युइन बॉन्ड के लिए। वो जेन्युइन कितना रह पा रहे हैं वो भी एक सवाल है, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के टाइम में वो इम्पैक्ट है उनके ऊपर बहुत, फिर वो पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट है बहुत, तो वो जेन्युइन अभी रह ही नहीं पा रहा बच्चा। हम्म। जेन्युइन नहीं रह पा रहा तो जेन्युइन बॉन्ड नहीं मिल पा रहा, इसलिए रिलेशनशिप के इश्यूज भी काफी हमारे पास आते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि कई बार तो इशू हो रहा है, झगड़ा हो रहा है उस बीच में, कई बार फिर ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद क्योंकि वो इमोशनली अब बहुत ही दुखी है, क्योंकि एक इंसान जिससे उसने बहुत कनेक्टेड फील किया, अब वो इंसान दूर है। कई बार ये भी होता है कि फैमिलीज के साथ बॉन्ड में कम्युनिकेशन नहीं है, हम्म। इसलिए वो एक इंसान के साथ उनका बहुत एक्सट्रीम बॉन्ड हो जाता है, राइट। किसी से भी बात नहीं कर रहे, फिर वो इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाती है कि ये आएगी तो ही मैं खाना खाऊंगा, और जो गर्लफ्रेंड है वो बोलेगी कि हाँ ये रहेगा तो मैं खाना। तो इतना इमोशनल डिपेंडेंट है कि एक टाइम बाद वो दोनों आपस में ही थक गए उस इमोशनल डिपेंडेंसी से, या एंड देन उसके बाद फिर इश्यूज होने लगे। पर एक चीज समझने की जरूरत जो है, और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आने भी लगता है कि one relationship is not your whole life, your whole life is so big, करेक्ट। and it's like a Indian थाली, अगर मैं एग्जांपल दूं फॉर फूड, तो जैसे दाल की भी जरूरत है, सब्जी की भी जरूरत है, रोटी की भी जरूरत है, कुछ मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा सा चावल भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए। तो लाइफ ऐसी है कि सब कुछ हम्म होना चाहिए उसमें, कि आप, आपका फैमिली कनेक्शन भी है, आपका दोस्त भी है, आपका कैरियर भी है, आपका हेल्थ भी है ना, आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हैं वो भी है, उसके साथ आपका कुछ पैशन भी है, कोई इंटरेस्ट भी है, तो वो उसी से ही पूरा होता है। सिर्फ रोटी रोटी खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, सिर्फ तो वो वाली चीज। I'm so happy that you used that beautiful analogy. And let's keep that as the final takeaway and memory of this particular dialogue कि एक balanced diet प्लेट पर भी और जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। And that is, I think, the balance that a good mental health function at an institute can bring to students, because unfortunately जिस स्टेज में हम लोग हैं, we tend to go and seek help only in response to the disaster, जब वो डिजास्टर हो जाता है। सो अगर हम सर्टेन चीजें अपनी जिंदगी में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लें, तो हम्म हम इंस्टेड ऑफ फायर फाइटिंग एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग एंड treating, we can हम्म do maintenance work and only build on that, and then build on defining this balance and putting it in practice.
Thank you so much for the lovely conversation. बहुत ही देर हो गई है, but that just shows there was so much to talk about. And I'm really genuinely happy about the work that you're doing, the fact that you're doing it in Jaipur, and it's been lovely to connect. Thank you so much, Karthik ji, for asking too many questions and Sorry. बट आई रियली फील सो गुड, क्योंकि जितना हम कोई चीज पे हम बात करते हैं, जितना हम डीप डाउन जाके उस पे बात करते हैं, वो उतना ही इम्बाइब भी कर पाते हैं, और जो भी लोग सुनेंगे इसको, और वो भी उतना गहनता से समझ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो उतना क्यूरोसिटी और उतना डीप डाउन जाके भी उसे नर्चर हो पाए, सुनने वाला उस तरह से कहें। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग these questions and for the whole session. It's very beautiful session. Yeah. So Thank you so this much. Thank you. thank you. Yeah.